Hello everyone, welcome to Complex Engineering. So in this video, I am going to talk about Panto control unit, or can say Panto control circuitry. Right now, what is this Panto control unit? It is a pneumatic circuit which is we can say electro-pneumatic circuit which is very responsible for raising and lowering of pantograph. Before starting with PCU, if you would consider this common example, everything will get clear within short span of time. Like as we all know, there are different subsystems which has been used in our trend, like for example boogie system, brake system, VAC system, PACIS system, door system, coupler system, braking system. So these are the subsystems, and by integrating all these subsystems, an entire train has been made. Every subsystem has its own control system, right? And this control system, what this control system is doing, this control system monitoring each and every activities which is happening in that particular subsystem, and it is displaying it over TCMS. Like for example, common example being, we have door system. In door system, there is this EDCU, electronic door control unit, which is like monitoring each and every activities of door, right? And it is giving status of each and every door over TCMS, due to which we are able to see status of each and every door in our trend. Like for example, if a particular door is isolated, we are able to see it on TCMS. How it is possible, how it is happening? It is just because of EDCU. It is a control system of door, and this control system is processing signal ahead in TCMS, due to which we are able to see the status of that particular door. And if I would give you another example, we have VAC system, ventilation air conditioning system. It has its own control system, right? So this control system monitoring each and every activities which is happening in VAC. Like for example, if condenser fan fails to operate at particular period of time, at particular instant of time, then we'll get to know about it in TCMS. How it is happening? It is happening just because of the control system which has been used in VAC, and it is transmitting signal of VAC over TCMS, due to which we are able to see the status of that particular TCMS. And with the help of this control system which is used in TCMS, or control system which is used in door, I can like control each and every subsystems. ये जो कंट्रोल सिस्टम जो VAC में जो कंट्रोलर जो लगा होता है, इसके थ्रू मैं VAC को मैन्युअली भी चला सकता हूँ, VAC को मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकता हूँ. सिमिलरली हमारे पेंटोग्राफ की कंट्रोलिंग के लिए भी हमारा एक कंट्रोल सिस्टम होता है, और वो जो कंट्रोल सिस्टम है उसे बोला गया है पेंटो कंट्रोल सिस्टम, और कैन से पेंटो कंट्रोल यूनिट. So in Panto control unit में हमें कुछ नहीं मिलेगा. It is just like cubicle. In cubicle we'll get different electro-pneumatic components, and every pneumatic component has its own function, and due to which our entire pantograph is operating, right? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें, पेंटोग्राफ की रेजिंग स्पीड, लोअरिंग स्पीड, रेजिंग टाइम, लोअरिंग टाइम, एडीडी ऑपरेट हो जाए, एमईडी ऑपरेट हो जाए, तो ऐसे केस में सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट ऑफ पेंटो कंट्रोल सर्किट. जैसे कि पेंटोग्राफ का रेजिंग टाइम अगर मुझे एडजस्ट करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ पेंटो कंट्रोल सर्किट आई कैन डू इट. अगर मुझे लोअरिंग स्पीड कंट्रोल करना हो, विद द हेल्प ऑफ PCU आई कैन डू इट. अगर मुझे हार्डवायर सिग्नल के थ्रू पेंटोग्राफ को अगर ऑपरेट करना हो, विद द हेल्प ऑफ PCU आई कैन डू इट. अगर ADD ऑपरेट हो जाए, एज यू ऑल नो देर इज दिस टू ऑपरेशन इन आर पेंटोग्राफ, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस operation, and second is maximum extension device operation. Now what are these two types of operation? ADD, automatic drop down device. ADD stands for automatic drop down device. Already we have discussed about all this thing, but since we are discussing about PCU, control circuitry of pantograph, so I think so discussing about this two topic is equally important, right? Automatic drop down device. Imagine the situation in which carbon strip got broken all of a sudden due to some problem in OHE, due to which pneumatic air will start to leak from the carbon स्ट्रिप. कार्बन स्ट्रिप के अंदर एक न्यूमेटिक पाइप होता है. अगर कार्बन स्ट्रिप अचानक से अगर ब्रेक हो जाए, तो ऐसे केस में न्यूमेटिक पाइप से जो एयर होगी वो क्या हो जाएंगी, वो लीक होना चालू हो जाएंगी. अब कार्बन स्ट्रिप क्यों ब्रेक होगी? मान लेते हैं OHE में कुछ इश्यू आ गया, OHE में मतलब कुछ, या फिर पेंटोग्राफ हमारा फंस गया किसी ऑब्स्टेकल में, कार्बन स्ट्रिप टूट गई, न्यूमेटिक एयर लीक होने लगी, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा. ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा, तो इन सच केस हमारा जो पेंटोग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा. इसके वजह से होगा क्या, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट? एडवांटेज इसका ये है कि हमारा जो पूरा जो पेंट है वो डैमेज होने से प्रिवेंट हो जाएगा, OHE को डैमेज नहीं होगा, और हमारा जो हाई वोल्टेज सिस्टम होगा वो भी डैमेज नहीं होगा, वो सेफ होगा. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस ADD, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस. अनदर वी हैव MED, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस. मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है OHE से नॉन OHE जोन में चले गई, तो जो हाइट होगी पेंटोग्राफी ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज कर जाएंगी. ऐसे केस में हमारा जो MED होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस विल गेट ऑपरेट एंड पेंटोग्राफ विल कम डाउन, राइट?
तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। तो मान लेते ADD MED ऑपरेट कर गया, तो ऐसे केस में ADD MED को मुझे क्या करना होगा, रिसेट करना होगा फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। सो इन such cases I can do it with the help of Panto control unit. So without wasting any time, so this was some examples of Panto control unit ADD MED के हमने कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर किया। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एक्चुअल हमें ये वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पेंटो इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय पेंटो कंट्रोल यूनिट एप्स। ऑब्वियसली जो पेंटो है उसे कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेंटो कंट्रोल यूनिट। नाउ व्हाट इज दैट मेन कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ, बेलो, राइट। जो बेलो है उसके वजह से होता है कि जो पेंटो है वो रेज होता है, जो एयर है वो बेलो में जाती है और जो बेलो है वो फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से जो पेंटो है वो ऊपर की तरफ जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पेंटो सर्किट है वो हमारी न्यूमेटिक सर्किट है। जब तक न्यूमेटिक एयर पेंटो सर्किट में है तब तक हमारा पेंटो रेज होगा। न्यूमेटिक एयर को ड्रेन कर दूंगा, पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट हियर इट हैज़ बीन रिटन, व्हेन एयर ड्रेन्स पेंटो लोअर्स डाउन। रेजिंग और जो लोअरिंग है, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जब एयर को ड्रेन कर देंगे पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड फॉर कंट्रोलिंग आवर पेंटोग्राफ। इससे पहले हमने एबनॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, बट अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पेंटो को चलाने के लिए पेंटो को रेजिंग और लोअरिंग पेंटो ऑपरेशन के दो मोड होते हैं, बेसिकली नॉर्मल मोड एंड सेकंड इज द रेस्क्यू मोड। इन नॉर्मल मोड रेजिंग एंड लोअरिंग कैन बी controlled with the help of TCMS, right? Raising lowering control by TCMS in normal mode। नॉर्मल मोड में जो रेजिंग और जो लोअरिंग है उसे कंट्रोल किया जाता है TCMS के थ्रू। बट दूसरा जो मोड है वो है रेस्क्यू मोड, जिसमें जो रेजिंग और जो लोअरिंग है उसे कंट्रोल किया जाता है हार्ड वायर सिग्नल के थ्रू। सो रेजिंग एंड लोअरिंग कंट्रोल बाय हार्ड वायर सिग्नल इन रेस्क्यू मोड। नॉर्मल मोड में रेजिंग एंड लोअरिंग कंट्रोल होगी TCMS के थ्रू, और रेस्क्यू मोड में रेजिंग और जो लोअरिंग होगी हार्ड वायर सिग्नल के थ्रू कंट्रोल होगी रेस्क्यू मोड में, राइट। Now let me show you the Panto control circuit, how it looks like, so you will get to know about the clear idea of PCU. It is like embedded in a cubicle. So let me show you the peak. So as you can see, it is embedded in the cubicle. There are different components. Just hold on for a second. There are different components which has been used. As we can see, this is pressure switch 1, pressure switch 2, and these are the pressure gauge. This is pressure gauge and PRV1 valve, and then TRV1 valve, WVM2 valve. Now what is the use of all these components, what these components are doing, that exactly we have to discuss in this video. And this is solenoid valve 1, and this is filter, and as you can see this is PLV1 valve, right. So every valve has its own function, so we'll discuss about each and everything in quite detailed manner, right. So in Panto control circuit there is input which is coming from train, right. So this is Panto control circuit. I hope you can see how it looks like. Just hold on. So in Panto control circuit there is input, as you can see there is input here. This is the input. From here main air is coming in Panto control unit, right. And here it is not an output, we can say it is also a type of input, right. ये भी एक तरीके का इनपुट है। किस टाइप का इनपुट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। सो आई होप ये फिगर से हमें सारी चीज़ें क्लियर है। सो एक एक कंपोनेंट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेशर स्विच 1, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेशर स्विच 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। प्रेशर स्विच 1 और प्रेशर स्विच 2 का क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं अभी, राइट। Pressure switch 1, pressure switch 1, pressure switch raise lowered. Pressure switch 1 shows position of Panto in TCMS. Pressure switch 1 with time delay relay shows the ADD lowering, right. Now as we all can understand what is the use of this pressure switch 1. Pressure switch 1 shows the position of pantograph in TCMS. It will show whether pantograph is in the raised condition or in the lowered condition, राइट। ये हमें बताता है पेंटोग्राफ की जो प्रेशर स्विच 1 है ये पेंटोग्राफ के हमें स्टेटस के बारे में बताता है कि पेंटोग्राफ हमारा रेज कंडीशन में या फिर लोवर्ड कंडीशन में, राइट। साथ ही साथ ये ADD लोअरिंग के भी बारे में बताता है। अगर ADD लोअरिंग अगर हो जाए, ADD लोअरिंग जैसे कि ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस अगर ऑपरेट हो जाए और पेंटोग्राफ अगर नीचे आ जाए तो इसको बोला जाता है ADD लोअरिंग। ADD लोअरिंग अगर आ जाए, ADD लोअरिंग अगर हो जाए तो ऐसे केस में भी ये प्रेशर स्विच हमें इंडिकेशन करता है, राइट। तो
तो यहाँ से हमने ये समझा प्रेशर स्विच 1 इसका क्या काम होता है, ये हमें पेंटोग्राफ की पोजीशन के बारे में बताता है कि जो पेंटोग्राफ है वो रेज है या फिर लोअर है। साथ ही साथ ये एडीडी लोअरिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है अलॉन्ग विथ टाइम डिले रिले, राइट। जब ये एडीडी लोअरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, एडीडी लोअरिंग हो गई है, तो ऐसे केस में टाइम डिले रिले के साथ ये मतलब सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्विच है वो है प्रेशर स्विच 2। प्रेशर स्विच 2 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो प्रेशर स्विच 1 है ये बेसिकली पेंटोग्राफ के स्टेटस को बताता है, पेंटोग्राफ रेज है या फिर लोअर है। और सेकंड ये हमें एडीडी लोअरिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, राइट। दूसरा प्रेशर स्विच 2, ये जो प्रेशर स्विच 2 है ये हमें बेसिकली एमईडी या फिर ओआरडी इंडिकेशन शो करता है। प्रेशर स्विच 2 शोज ओआरडी और एमईडी स्टेटस, राइट। व्हेन ओआरडी एमईडी एक्टिवेटेड देन सिग्नल जनरेट्स दिस सिग्नल स्विच ऑफ सोलोनाइड वाल्व 1 of all solenoid valve 1 of all panto due to which all panto lowers normally। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया प्रेशर स्विच 2 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना है। जैसे कि हमने बात किया था प्रेशर स्विच 1, ये जो प्रेशर स्विच 1 है पेंटो के स्टेटस के बारे में बताएगा कि पेंटो हमारा रेज है या फिर लोअर्ड कंडीशन में, और साथ ही साथ ये एडीडी लोअरिंग के स्टेटस के भी बारे में बताएगा। यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रेशर स्विच 2 दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रेशर स्विच 2 है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, एमईडी के बारे में हमें बताता है, एमईडी इंडिकेशन शो करता है, एमईडी लोअरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मान लेते हैं हमारा ट्रेन जो है वो OHE से नॉन OHE जोन में चले गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, एमईडी ऑपरेट हो जाएगा, राइट। एमईडी ऑपरेट हो जाएगा तो ये हमें कैसा पता चलेगा, ये हमें प्रेशर स्विच 2 के थ्रू पता चलेगा, ये है प्रेशर स्विच 2, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया ट्रेन OHE से नॉन OHE जोन में चले गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एमईडी होगा वो क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा, एमईडी ऑपरेट हो जाएगा, राइट। जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो सोलोनाइड वाल्व 1 है, ये सोलोनाइड वाल्व 1 SV1 इसका फुल फॉर्म है सोलोनाइड वाल्व 1। यहाँ पर हमारी ट्रेन में टोटल कितने पेंटो है, 3 पेंटो है। तो कितनी पेंटो कंट्रोल यूनिट है, 3 पेंटो कंट्रोल यूनिट है। तो यहाँ पर जैसी हमारी ट्रेन OHE से नॉन OHE जोन में जाएंगी तो एमईडी ऑपरेट हो जाएगा। एमईडी ऑपरेट होने की वजह से होगा क्या, ये जो सोलोनाइड वाल्व 1 है ये क्या हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, हमारी तीनों ट्रेन के जो पेंटोग्राफ हो गए वो क्या हो जाएंगे, डाउन कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमारा ORD MED एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हमारी ट्रेन OHE से नॉन OHE जोन में चले जाएंगी, तो ऐसे केस में हमारा ORD या फिर बोल सकते हैं MED क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, MED सिग्नल जनरेट होगा। अब ये जो सिग्नल है, ये MED सिग्नल ये क्या करेगा, सोलोनाइड वाल्व 1 को क्या कर देगा, डी एनर्जाइज कर देगा तीनों पेंटो कंट्रोल यूनिट के, जिसके वजह से होगा क्या, तीनों जो पेंटोग्राफ हो गए वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मली नीचे की तरफ आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर ये MED एक्टिवेट हुआ, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, प्रेशर स्विच 2 के थ्रू पता चलेगा, जो कि हमें MED का इंडिकेशन देगा, राइट। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था, 2 तरीके की लोअरिंग होती है, एक नॉर्मल लोअरिंग होती है और एक एबनॉर्मल लोअरिंग होती है। यहाँ पर अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, पेंटोग्राफ कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ORD थ्रू ORD एंड MED। ORD MED के थ्रू अगर पेंटोग्राफ नीचे आ रहा है तो ऐसे केस में इसको हम लोग नॉर्मल लोअरिंग ही बोलेंगे, राइट। इसको हम लोग नॉर्मल लोअरिंग ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटोग्राफ की कार्बन स्ट्रिप में कुछ डैमेज नहीं हुआ है। पेंटोग्राफ जो है वो एक सर्टन हाइट से ऊपर चले गया था, जिसकी वजह से MED ऑपरेट हो गया और जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ गया। सो दिस टाइप ऑफ लोअरिंग इज नोन एज नॉर्मल लोअरिंग। बट पेंटोग्राफ की स्ट्रिप अगर डैमेज हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा, राइट, और पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। और ये जो लोअरिंग है इसे बेसिकली कौन सी लोअरिंग बोली जाती है, एबनॉर्मल लोअरिंग बोली जाती है, राइट। तो अब तक के हमने 2 कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रेशर स्विच 1 के बारे में, प्रेशर स्विच 2 के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रेशर स्विच 1 का क्या काम होता है, जो प्रेशर स्विच 1 है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहला ये हमें बेसिकली एडीडी के इंडिकेशन, एडीडी लोअरिंग के बारे में मैसेज कन्वे करता है। एडीडी लोअरिंग का जो सिग्नल है उसके बारे में बताता है। एडीडी लोअरिंग होती है तो ये हमें पता चलेगा प्रेशर स्विच 1 के थ्रू। और ये TCMS में पेंटोग्राफ के स्टेटस के भी बारे में बताता है कि पेंटोग्राफ रेज कंडीशन में या फिर लोअर कंडीशन में। सेकंड, जैसे हमने बात किया प्रेशर स्विच 2, ये हमें किसके बारे में बताता है, ORD MED इंडिकेशन के बारे में बताता है, राइट। जैसे कि हमने बात किया, जैसे ही ORD MED ऑपरेट हो जाएगा, सिग्नल जनरेट होगा MED सिग्नल, और ये क्या करेगा, सोलोनाइड वाल्व 1 को क्या कर देगा, डी एनर्जाइज कर देगा सारे PCU के, जिसके वजह से तीनों जो ट्रेन के कार के जो पेंटोग्राफ हो गए वो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी यहाँ पर अभी एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया नॉर्मल लोअरिंग, एबनॉर्मल लोअरिंग क्या होती है। व्हेन ऑक्सिलरी कंप्रेसर ऑपरेट्स बाय बैटरी वोल्टेज द एयर प्रेशर जनरेट्स
outlet of PCU connected with 3 pipes on roof. When Panto TC1 and TC2 connect with the high voltage line, then pressure starts to generate in MR pipe. अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये हमें पेंटो कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा है। अब ये पेंटो कंट्रोल यूनिट में अगर हम लोग देखें, इनपुट प्रेशर होता है और यहाँ पर ये आउटपुट। बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये आउटपुट नहीं होता, मोर टेक्निकली ये बेसिकली इनपुट ही होता है जो कि हमारे PCU में आ रहा होता है। ये अगर हम लोग फिगर को अगर देखें तो ये फिगर से हमें पता चलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर से पता चलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमें पेंटो कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने बात किया था। यहाँ पर ये प्रेशर स्विच 1, प्रेशर स्विच 2, यहाँ पर ये प्रेशर गेज था, फिर ये PRV1 वाल्व था, फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया था सोलोनाइड वाल्व 1 था, SV1 वाल्व था, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये हमारे पेंटो कंट्रोल यूनिट में अगर हम लोग देखें, यहाँ से मेन एयर सप्लाई आ रही है, यहाँ से मेन एयर सप्लाई आ रही है, और 3 जैसे कि हमने देखा था 3 हमें कुछ टर्मिनल्स दिखाई दे रहे थे। अब ये जो 3 जो टर्मिनल्स है, इसमें भी सप्लाई आती है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से। यहाँ से जो सप्लाई आ रही होती है वो बेलो की सप्लाई आ रही होती है, यहाँ से जो सप्लाई आ रही होती है वो ORD की सप्लाई आ रही होती है, और यहाँ से जो न्यूमेटिक सप्लाई आ रही होती है वो ADD की सप्लाई आ रही होती है, राइट। तो यहाँ पर जो सप्लाई आती है ADD इंडिकेशन, और यहाँ पर जो सप्लाई आती है ओवररीच ODD के इंडिकेशन के लिए आती है, और यहाँ से जो सप्लाई है बेलो सप्लाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 जो सप्लाई आ रही है, एक ADD सप्लाई आ रही है और तीसरी ORD सप्लाई आ रही है, दूसरी ORD सप्लाई आ रही है, और तीसरी जो सप्लाई आ रही है बेलो सप्लाई आ रही है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें सारे चीज़ के अगर हम लोग फुल फॉर्म के बारे में देख ले, F1 जैसे कि हमने बात किया था फिल्टर, SV1 सोलोनाइड वाल्व पेंटो एक्टिवेशन, रिस्पॉन्सिबल होता है पेंटो के एक्टिवेशन के लिए। PRV1 वाल्व प्रेशर रेगुलेशन वाल्व, जैसे कि हमने बात किया था। TV1 वाल्व थ्रॉटल साइलेंसर, PG1 प्रेशर गेज, TRV1 वाल्व थ्रॉटल वाल्व, PLV1 वाल्व ब्लो ऑफ वाल्व, ABD वाल्व हेल एयर बेलो ड्राइव, WV1 वेव वाल्व, ORD QEV क्विक एग्जॉस्ट वाल्व, ADD वाल्व, राइट। तो ये सारे एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग पेंटो कंट्रोल सर्किट ये वाली डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये 3 किसके लिए दिया है, एक ADD सप्लाई, ADD की इनकमिंग सप्लाई, और यहाँ से ORD की इनकमिंग सप्लाई, और यहाँ से बेलो की इनकमिंग सप्लाई, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जब हमारा ऑक्सिलरी, जब हम लोग ट्रेन को ऑक्स ऑन करते हैं तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ बैटरी वोल्टेज, जिसके वजह से होता क्या है 110 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर को जब हम लोग ट्रेन को ऑन करते हैं। तो ऐसे केस में 110 वोल्ट DC सप्लाई हमारे ऑक्सिलरी कंप्रेसर को चलाता है, जिसके वजह से होता है क्या, एयर बनती है, और ये जो एयर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में क्या होती है, स्टोर होती है, एयर प्रेशर बनता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पेंटोग्राफ को रेज होने के लिए हमारे पेंटो कंट्रोल यूनिट में कितने से कितना प्रेशर जाना चाहिए। मिनिमम प्रेशर 5 बार, मैक्सिमम प्रेशर 10 बार, और अगर हम लोग ऑप्टिमम प्रेशर कंसिडर करें विच विल कॉज रेसिंग ऑफ पेंटोग्राफ, दैट इज 7 बार। 7 बार अगर PCU में जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये पेंटो कंट्रोल यूनिट के इनपुट में गया 5 बार प्रेशर, पेंटोग्राफ रेज होगा, नहीं होगा। 6 बार प्रेशर गया, पेंटोग्राफ रेज होगा, नहीं होगा। इनपुट प्रेशर 7 बार गया, पेंटोग्राफ रेज होगा, ऑप्टिमम प्रेशर है, पेंटोग्राफ रेज हो जाएगा। 10 बार का जो प्रेशर है ये बेसिकली मैक्सिमम प्रेशर होता है पेंटो कंट्रोल यूनिट में। तो पेंटो कंट्रोल यूनिट में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है कितने बार का होता है, 10 बार का होता है, राइट। जैसे कि हमने बात किया था ये आउटलेट होता है, बट एक तरीके से देखिए वो आउटलेट नहीं होता है, वो इंडिकेशन होता है, राइट। वन सेकेंड रिपीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ऊपर वाला जो होता है किसके लिए होता है, वो ADD इंडिकेशन के लिए, ADD इंडिकेशन की सप्लाई आ रही होती है, ODD इंडिकेशन की सप्लाई आ रही होती है, ORD इंडिकेशन नॉट। यहाँ पर एक चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, ADD ODD क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस और ओवररीच डिटेक्शन डिवाइस दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। पेंटो की हाइट अगर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाएंगी, पेंटो नीचे आ जाएगा। ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस, ये बेसिकली कार्बन स्ट्रिप जब टूट जाती है तो उसके लिए ये रहता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ADD इंडिकेशन, यहाँ पर ये ADD के लिए सप्लाई, यहाँ पर बेलो ड्राइव के लिए सप्लाई, और यहाँ पर ये ओवर रीच डिटेक्शन ORD MED सप्लाई, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आउटलेट ऑफ, यहाँ पर जैसे हमने बात किया ये आउटलेट नहीं है,
एक तरीके से देखा जाए तो व्हेन पेंटोग्राफ, अभी जैसे कि हमने बात किया, पहला हमारी TC1 कार का पेंटोग्राफ रेज होगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू, TC2 कार का कंप्रेसर रेज होगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू, MC2 कार का जो कंप्रेसर TC1 कार का जो पेंटोग्राफ होगा रेज होगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू, TC2 कार का पेंटोग्राफ रेज होगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू, और जो MC2 कार का जो पेंटोग्राफ जो रेज होगा वो ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू नहीं होगा, वो MR कंप्रेसर के थ्रू होगा, राइट। व्हेन पेंटोग्राफ TC1 एंड TC2 कनेक्ट विथ हाई वोल्टेज लाइन, जब पेंटोग्राफ TC1 और TC2 हाई वोल्टेज लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, किसमें, MR पाइप में, राइट। पेंटो रेज कमांड इज गिवन बाय ट्रेन ओनली व्हेन प्रेशर रीचेस टू 7 बार एट दी PCU इनलेट। जैसे हमने बात किया, जब प्रेशर 7 बार तक के जाएगा तभी PCU के इनपुट में जब प्रेशर 7 बार जाएगा तब जाके हमारा जो पेंटोग्राफ होगा वो रेज होगा। PCU के इनपुट में 7 बार जाना चाहिए और फिर उसके बाद वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर हमारा पूरी तरीके से क्या होगा, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वो जो प्रेशर होगा और मॉडिफाई होगा, और पेंटो में जाने से जस्ट पहला जो प्रेशर होगा 3.5 बार के ऊपर होगा, तभी हमारा पेंटो रेज होगा। एट दी PCU इनलेट 7 बार प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंटो रेजिंग। जैसे कि हमने बात किया 7 बार प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ, राइट। हियर देयर आर सम पॉइंट्स विच इज रिलेटेड विथ रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ। रेज कमांड एग्जीक्यूट ओनली व्हेन 7 बार प्रेशर एट द इनलेट ऑफ PCU। जो रेज कमांड होगा वो तभी जनरेट होगा जब हमारे PCU के इनलेट में 7 बार प्रेशर होगा। वंस प्रेशर रीच टू 7 बार देन एज सोलोनाइड वाल्व 1 इज स्विच ऑन थ्रू TCMS। जैसे कि हमने बात किया, जब प्रेशर 7 बार तक के चले जाएगा तो ऐसे केस में जो सोलोनाइड वाल्व 1 है वो एनर्जाइज हो जाएगा, किसके थ्रू, TCMS के थ्रू। सोलोनाइड वाल्व 1 टर्न ऑन हो जाएगा TCMS के थ्रू। न्यूमेटिक प्रेशर फ्लोज थ्रू PRV1 valve which regulate incoming pressure to the working pressure or can say require pressure which can be monitored on pressure gauge. Working pressure responsible for static force of 70 Newton. Static force continuous contact, right। अभी यहाँ पर ये static force का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो पेंटोग्राफ है वो हमारे OHE के कांटेक्ट में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली रहना चाहिए, राइट। कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना चाहिए OHE के हमारे पेंटोग्राफ की कार्बन स्ट्रिप, राइट। तो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रखने का काम कौन करता है, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रखने का काम करता है एक फोर्स जिसे बोला जाता है स्टैटिक फोर्स। सो स्टैटिक फोर्स इज ए फोर्स विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कीप द कार्बन स्ट्रिप कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द OHE। और वो जो स्टैटिक जो फोर्स है, स्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है उसे, स्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स वो कितने न्यूटन का होता है, 70 न्यूटन का होता है। तो स्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स ये 70 न्यूटन का होता है, राइट। इसको हम लोग बेसिकली, जैसे कि हमने बात किया, ये स्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या, कौन सा प्रेशर होता है, वर्किंग प्रेशर। इसको बहुत सिंपल सिनेरियो में अगर हम लोग समझे तो जैसे कि हमने बात किया, जब हमारे पेंटो कंट्रोल यूनिट में 7 बार प्रेशर जाएगा तभी जाके हमारा जो सोलोनाइड वाल्व 1 होगा वो क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा, किसके थ्रू, TCMS के थ्रू। जिसके वजह से होगा क्या, देखो पेंटोग्राफ की रेजिंग के लिए जो सोलोनाइड वाल्व है SV1 वाल्व वो एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्टिवेट अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में हमारा पेंटोग्राफ रेज होगा ही नहीं, राइट। सो इन ऑर्डर टू रेज द पेंटोग्राफ, जो सोलोनाइड वाल्व 1 है SV1 वाल्व, उसको एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी एनर्जाइज होगा जब प्रेशर हमारा PCU में 7 बार तक के होगा। तो मान लेते हैं PCU का जो प्रेशर है वो 7 बार हो गया, तो ऐसे केस में हमारा जो सोलोनाइड वाल्व 1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्विच ऑन हो जाएगा, किसके थ्रू होगा, TCMS के थ्रू होगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जो न्यूमेटिक प्रेशर होगा वो फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये सोलोनाइड वाल्व जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे केस में न्यूमेटिक प्रेशर फ्लो होना चालू हो जाएगा, किसके थ्रू, PRV1 वाल्व के थ्रू। अभी जो PRV1 वाल्व होता है ये क्या करता है, जो इनकमिंग प्रेशर होता है उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है और उसको वर्किंग प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और ये जो वर्किंग प्रेशर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको मेंटेन करने के लिए, और ये जो वर्किंग प्रेशर है उसको मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। तो जो भी